Hello students, welcome to the first topic of 12th Commerce. The topic name is Accounting for Not-for-Profit Organizations. Students, if you remember, आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का था? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. बट देयर आर सम एनपीओज आल्सो जिन्हें हर साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं. नाउ व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? The organizations, those are working not with the objective of profit earning. These are known as a service provider. इनका objective profit earning नहीं होता. ये प्रमोट करते हैं कल्चरल, आर्ट, एजुकेशनल, चैरिटेबल एक्टिविटीज अपने मेंबर्स को. एग्जांपल ऑफ एनपीओज: स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, क्लब्स, लाइब्रेरीज, एक्सेट्रा. At the end of every year, these organizations also have to prepare their final accounts. जैसा अपने 11th में profit making organizations के लिए पढ़ा था. Similarly, in 12th class also, you have to make the final accounts for NPOs, and their final accounts are: number 1, receipts and payments account; number 2, income and expenditure account; number 3, balance sheet. Now, if you think about receipts and payment account, you all know this account because this is similar to cash book, which we have studied in class 11. If we talk about income and expenditure account, it is similar to profit and loss account. Again, you have studied in class 11. And balance sheet, it is a combination of assets and liabilities. Students, अगर हम बात करें receipts and payment account की, तो इस account का basic objective क्या है कि इन संस्थाओं के पास कितना कैश आया और कितना कैश गया in the entire year. So, it is similar to cash flow. If we talk about nature of this account, it is real. If we talk about the nature of income and expenditure account, as it is similar to profit and loss account, the nature of this account is nominal. Because इसमें पूरे year के expenditure and income दिखाया जाता है, right? This account, receipts and payment account, works on which basis? Cash basis. Because class, हमें यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना है, कितना कैश आया and कितना कैश गया, irrespective of any year. But if we talk about income and expenditure account, which is similar to profit and loss account, the nature, the basis of this account is accrual. Why accrual? Because students, in income and expenditure account, we show all the incomes and all the expenditure related to current year only. Right, students? Okay? Students, एक important question जो बच्चों के दिमाग में चलता है कि सर, जब ये organizations प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क ही नहीं कर रही, तो इनका इनकम होता कहां से है? So now we should discuss major income sources of NPOs. The number one and most important income is subscription. Now, what is the meaning of subscription? Amount received from the members of NPOs on a regular basis. This is one of the most important income. अगर आप किसी संस्था के सब्सक्राइबर हैं, तो you have to pay some amount to that organization. And उस organization की सबसे main income क्या है? Subscription. Okay, students? Then donation. इन संस्थाओं को कहीं से भी donation मिलता रहता है, वो इनकी normal income है. Then specific donation. Now, what is the difference between donation and specific donation? अगर किसी पर्सन ने एक ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए डोनेशन दिया, that becomes liability for the organization. Then membership fees. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने मेंबर से कुछ अमाउंट चार्ज करती हैं, उसे हम मेंबरशिप फीस कह सकते हैं. And it can be life membership fees also. It means, what is the difference? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर से लाइफ टाइम का फीस वन टाइम में ले रही है, that can be considered as life membership fees. लेकिन ये इनकम बार बार रिसीव नहीं होगी. Then entrance fees. Few organizations charge entrance fees also from the members. जरूरी नहीं है कि ये सारे टर्म्स आपको एक क्वेश्चन में दिखे, एक ऑर्गेनाइजेशन में दिखे, but it can be of these type of terms, right? Then legacy. Now, important word, legacy. Amount received under a will of a deceased person means what? अगर किसी पर्सन की जायदाद के थ्रू, विल के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिले, वो
लेगेसी होता है, राइट स्टूडेंट्स? एंड ये पैसा अगेन एंड अगेन नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई इट बिकम्स लायबिलिटी फॉर द एनपीओस एज वेल एज ग्रांट्स या एड्स फ्रॉम गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, कई बार इन संस्थाओं को गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती रहती है, बिकॉज इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द मेजर इनकम सोर्सेज, वी शुड डिस्कस सम एक्सपेंडिचर आल्सो। एक्सपेंडिचर की बात करें, इन ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं? सैलरीज टू एम्प्लॉइज, बिकॉज यहाँ पर भी कुछ एम्प्लॉइज होंगे जो वर्क करेंगे इन संस्थाओं के लिए, wages, postage, printing and stationery, purchase of fixed assets, then payment of honorarium. A different word, you should know this word, payment of honorarium. उस पर्सन को अमाउंट पे करना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर उससे अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं? बिकॉज हो सकता है उसने हमारी संस्था को कुछ सर्विस प्रोवाइड की एंड बदले में हमने उसको कुछ अवार्ड, टोकन ऑफ मनी कुछ पे किया, दैट इज नोन एज पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। एज वेल एज अगर हमारे पास कुछ फिक्स एसेट्स है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना, दैट आल्सो कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड others expenditure, right? So these are the major income sources of NPOs and few expenditure, right? अब बात ये आती है कि हमने ये सब पढ़ तो लिया, बट स्टूडेंट के माइंड में अभी भी टेंशन चल रहा है, सर हमें इस चैप्टर में क्या करना है? सी क्लास, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, इन संस्थाओं को भी ईच एंड एवरी ईयर कैन में 3 चीजें बनानी होती है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट व्हिच वर्क्स ऑन कैश बेसिस, income and expenditure account which works on accrual basis and the balance sheet। तो स्टूडेंट, हमारा मेन टारगेट है क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें उसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जिसे आप माइंड में क्या ट्रीट कर सकते हैं? 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम्स। कौन सी इनकम? करंट ईयर की। कौन सा एक्सपेंडिचर? करंट ईयर का। और बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेरी वेल, वी यूज्ड टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट इसके आगे प्रोसीड करने के लिए वी शुड डिस्कस व्हाट? रिसिप्ट्स। व्हाई रिसिप्ट्स? आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, रिसिप्ट मींस कहीं से भी हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है या रिसीव होने वाला है। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, कैपिटल रिसिप्ट्स। आपने ये 11th में स्टडी किया था स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स? व्हिच इज ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार रिसीव नहीं होगा। सेकंड टाइप ऑफ रिसिप्ट्स इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स? वो रिसिप्ट्स जो रिकरिंग नेचर की है, मींस रिपीटेटिव नेचर की है, जो ईच एंड एवरी ईयर हमें होती रहेगी, राइट? अगेन सर, हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी मेजर इनकम सोर्सेज, ये रिसिप्ट्स ही तो है, बट अगर हमने इसको क्लासिफाई नहीं किया इनटू कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो आगे अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज कैपिटल रिसिप्ट्स विल बी शोन under the category of liabilities. These are our liabilities. And if we talk about revenue receipts, ये NPOs के अंदर कहां शो होगा? इनकम की कैटेगरी में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। सो वी शुड नो कि जो भी हमारी इनकम्स है, इसमें कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी है। बिकॉज रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम कहां शो करेंगे स्टूडेंट्स? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल रिसिप्ट्स, इसे हम कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। जब तक हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। सो नाउ वी शुड डिस्कस दीज टर्म्स। सब्सक्रिप्शन, गेस कीजिए जल्दी से, ये कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट्स या रेवेन्यू रिसिप्ट्स? यस, ट्राई कीजिए। It comes into the category of revenue receipts, यानी हमारी इनकम है, हर साल हमें पैसा मिलता रहता है हमारे मेंबर से। डोनेशन, इफ नथिंग स्पेसिफाइड, कौन सी रिसिप्ट है ये? यस, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक डोनेशन, बताइए। यस, इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, बिकॉज इस पैसे को हम जर्नल यूज में नहीं ले सकते, इट बिकम्स आवर लायबिलिटी।
इफ वी टॉक अबाउट मेंबरशिप फीस, ये हमें रेगुलर मिलेगी हमारे मेंबर से, दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स। बट इफ वी टॉक अबाउट लाइफ मेंबरशिप फीस, जो हमें अपने मेंबर से कितनी बार मिलेगी बताइए, वन टाइम और अगेन एंड अगेन, वन टाइम, सो इट बिकम्स आवर लायबिलिटी, दैट्स व्हाई कैपिटल रिसीप्ट्स। एंट्रेंस फीस, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है स्टूडेंट्स, देन एंट्रेंस फीस विल बी कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हर साल हम मानते हैं कि हमें हमारे मेंबर से एंट्रेंस फीस मिलेगा, अगर स्पेसिफाइड हो इन द क्वेश्चन दैट इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो ये कौन से रिसिप्ट में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स, ओके। देन लेगेसी 100% कौन से रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ग्रांट्स की बात की जाए या एड्स फ्रॉम गवर्नमेंट की बात की जाए, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिला है, देन इट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, ओके स्टूडेंट्स। सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाए, तो हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे। नाउ आफ्टर रिसिप्ट्स वी शुड डिस्कस एक्सपेंडिचर, जो हमने 11th में भी डिस्कस किया था। हाँ, इन 11th क्लास वी डिस्कस इट कि एक्सपेंडिचर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट इन केस ऑफ NPOs, इसके हम 2 पार्टीशन कर सकते हैं। नंबर 1 पार्टीशन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मींस व्हाट, the expenditure which is of non recurring in nature, जो बार बार नहीं होता, right? And the second one is revenue expenditure, वो expenditure जो हर साल होता रहता है, right? Capital expenditure के क्लास एक ही मेन एग्जांपल है, that is purchase of fixed assets, purchase of fixed assets। और बाकी सारे नॉर्मल नेचर के एक्सपेंडिचर है, लाइक सैलरीज, वेजेस, पोस्टेज, ये सारे कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट क्लास। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, वी विल डिस्कस द एंटायर चैप्टर इन स्मॉल टॉपिक्स, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ओके। बट बिफोर प्रोसीड फर्दर, वी शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ NPOs। फर्स्ट अकाउंट इज receipt and payment account. Generally it is given in the question, but not every time. इस साल जो लास्ट बोर्ड का पेपर आया था, उसमें बोर्ड के पेपर में they asked for receipt and payment account। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ये कौन से नेचर का अकाउंट है बताइए, what is the nature, real, okay। और ये किस बेसिस पे वर्क करता है, कैश बेसिस। why? बिकॉज इस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, कितना कैश आया और कितना कैश गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप ऑफ रिसिप्ट, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आया। सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद टू बैलेंस पीडी, कैश इन बैंक का बैलेंस, इसके बाद सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी, कहीं से भी पैसा आपके पास आ रहा है या फिर जा रहा है, salaries, postage, printing and expenditure and all, especially fixed asset purchase किया या any cash expense जिससे cash जा रहा है, and at the end balance sheet। Now what is our main objective? To prepare income and expenditure account। और ये किस account की help से बनेगा? From receipts and payment account। देखिए क्लास, यहाँ पर आपने सारी receipts लिखी है, right? Because cash is coming into the organization। But if we talk about इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां हम केवल कौन से रिसिप्ट्स लिखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कौन से रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यू नो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी है, इसमें भी स्पेशली एक और चीज क्या ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स को, केवल करंट ईयर के इनकम ही लिखी जाएगी, ना ही प्रीवियस ईयर, ना ही नेक्स्ट ईयर, ओके स्टूडेंट्स। एज वेल एज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिखते हैं, करंट ईयर की लिखनी है, सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी कौन से नेचर के लिखने हैं। देखिए यहाँ पर सारे एक्सपेंडिचर हैं, बट जब हम यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, वी हैव टू शो ओनली कौन से एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो भी कौन से ईयर के, ओनली एंड ओनली करंट ईयर। कौन से ईयर के स्टूडेंट्स, करंट ईयर। बिकॉज अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, बट
income and expenditure account में we will show only revenue expenditure. Then what about the capital expenditure? बच्चों capital expenditure means what? Purchase of fixed assets. तो capital expenditure को हम कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट की assets में. और अगर हम रिसिप्ट्स की बात करें, जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो कर रहे हैं, व्हाट अबाउट कैपिटल रिसिप्ट्स? दैट बिकम्स आवर लायबिलिटीज. कैपिटल रिसिप्ट्स को हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में लिखना होगा. सिंपल. नाउ अगर हम आगे प्रोसीड करें, सबसे इंपॉर्टेंटली देयर आर फ्यू टर्म्स व्हिच कैन नॉट एंटर इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट but they enter in income and expenditure account. जैसे कि depreciation on fixed asset, receipt and payment में नहीं आता but यहाँ आता है. Next, outstanding expenses, receipts and payment में नहीं आता but यहाँ आता है. Accrued income, receipts and payment में नहीं आता but यहाँ आता है. Now, if we conclude income and expenditure account, जैसे 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता था, स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से भी कुछ रिजल्ट मिलेगा. नंबर 1, अगर इन संस्थाओं को प्रॉफिट हुआ, वैसे इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बट अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? टू सरप्लस. क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? टू सरप्लस. एंड इन केस अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो उसे हम नाम देंगे डेफिसिट. क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? डेफिसिट. और 11th क्लास में आप इस सरप्लस को जहां नेट प्रॉफिट लिखते थे, क्या करते थे स्टूडेंट्स? क्या याद कीजिए, आप बैलेंस शीट के अंदर एक वर्ड लिखते थे कैपिटल, बट इन केस ऑफ एनपीओस कैपिटल वर्ड एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बिकॉज ये कोई मालिक नहीं है इसका. These organizations are run by the society. Members इसको रन करते हैं, members, right? तो इसलिए instead of capital हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल फंड. और जितना भी सरप्लस इन ऑर्गेनाइजेशन को होगा, that will be added in the capital fund. Okay क्लास? और in case of deficit, अगर लॉस हो जाए, तो उसे कैपिटल फंड में क्या कर देंगे? लेस कर देंगे. वेरी सिंपल. एंड एट द एंड अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ गया, इट मींस आपने इनके अकाउंट्स परफेक्टली